Today, our first topic of this class is War of Independence, 1857. Uh, this is our first topic, War of Independence, 1857, that was started to dislodge the British from India by force of arms. British who colonized this region and rule over the Indians till 1947, and initially the British came here and established the East India Company in 1600, and from that day they ruled over the people of India, and the local people were not happy of British East India Company because and the rule of the British directly rule over India after the end of the War of Independence in 1857. Before 1857, or you can say till 1857, British indirectly rule over here by the help of the East India Company. Actually, the basic purpose to establish the East India Company was trading. British East India Company was established for the purpose of trade, uh, from collect the raw material or other product from India and export it to the country. Uh, to the country. Now, today we will discuss the political, religious, social, economic, as well as some other causes of the War of Independence 1857. Some called it spy mutiny, especially British and foreigners called it spy mutiny. Why they called it spy mutiny? क्यों वो इसको spy mutiny कहते हैं? हम एशियन जो हैं हम इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, वी कॉल्ड इट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमने ब्रिटिश रूल से हमने इंडिपेंडेंस के लिए ये वॉर स्टार्ट की थी. वी स्टार्टेड दिस वॉर टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश. uh, but the foreigners called it a spy mutiny. Why foreigners or British called it spy mutiny? The reason is they assumed that this mutiny or revolt or rebellion was started by the spies that were recruited in the British army. जिनको and the revolt and mutiny was started due to the cartridges and that used in the Enfield rifles that introduced by the British army in subcontinent. Yes, the year of 1857 is significant in the political and cultural history of India. Why the year of 1857 is important in the political history of India? Because the War of Independence was fought in 1857. We will discuss the context of this war. Actually, collapse of Mughal Empire, which had given birth to the great civilization. Mughal Empire, who ruled over here from uh, hundreds of years, uh, and this empire was collapsed, and we have many reasons to collapse this empire, Mughal empire, जिन्होंने इतनी hundreds years, many hundreds years यहाँ पे रूल किया और वो मुगल एम्पायर कोलैप्स कर गई. कुछ उसमें we have lot of reason of this, और उन्होंने एक ग्रेट सिविलाइजेशन को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया. uh, and this was the period, transition period between the two civilization, education system, philosophies of life, and the political and social system were replaced by the new one. How the old political and social system were replaced by the new one? कैसे? अब यहाँ British introduce a new system here, new political, educational, economic system introduced here, and the old system uh, were destroyed here. जो
जहाँ की जो ओल्ड पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम था उसको वो डैमेज की हुआ और न्यू सिस्टम जो है वो यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया. When British came here and occupied this region, they said that they came here to modernize the people of India because the Indians are backward, superstitious, and inferior. ठीक है, उनका कहना था कि यहाँ के जो इंडियंस हैं वो इंफीरियर हैं, सुपरस्टिशियस हैं और एडवांस नहीं है, मॉडर्नाइज नहीं है, और हम ब्रिटिश जो हैं वी आर सुपीरियर क्योंकि हम वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम, एडवांस इक्विपमेंट, और हमने बहुत सी इन्वेंशंस की हैं, डिस्कवरीज की हैं, और यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही जो है द पीपल ऑफ इंडियंस आर लैग बिहाइंड इन ऑल द फील्ड ऑफ लाइफ. जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें वो बहुत पीछे हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उनका वो समझते थे कि हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग थे दे वर अनविलिंग टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश. जब उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसको हमें कॉलोनलाइज्ड कर रहे हैं, हमारे सिस्टम को, हमारे स्ट्रक्चर को, हमारा एक सोशल फैब्रिक को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो दे स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश. तो उन्होंने उनको जो है, और दिस वाज नॉट अ सडन event. War of independence was not the sudden event. This was the gradual process. एक जो भी कभी भी रिवॉल्ट जो है, रिवॉल्ट, म्यूटनी या इंडिपेंडेंस के लिए कोई भी वॉर या किसी भी पर्पस के लिए हम कोई भी वॉर स्टार्ट करते हैं तो कभी भी सडन नहीं होती. अपराइजिंग कभी भी सडन नहीं होती. उसके कुछ कॉजेज होते हैं उसकी बैक पे, और ग्रेजुअली ग्रेजुअली स्टूडेंट इन जितने भी लोग हैं वो इन चीज़ों को रियलाइज करते हैं, और फिर वॉर, म्यूटनी या प्राइजिंग, कुछ भी आप इसको कह लें, वो स्टार्ट हो जाती है. अब इसमें ये भी कंसिडर किया जाता है द फॉल, इट वाज कंसिडर्ड बाय द ब्रिटिश और फॉरेनर्स दैट cartridges that used in Enfield rifle was the sole cause of this war. But this was not true. ये true नहीं था कि सिर्फ grease cartridges in which cow and pig fat was used, and when the soldiers uh, uh, load the gun with the mouth, and it was not suitable for both communities, Hindus and Muslims. ये उनके लिए, दोनों के लिए सूटेबल नहीं था. हिंदूज के लिए सूटेबल नहीं था बिकॉज काउ फैट उसमें यूज होता था, और मुस्लिम्स के लिए पिग इज प्रोहिबिटेड फॉर द मुस्लिम्स, और उसमें उसकी फैट जो है उन कार्टिजेस में यूज होती थी. Sir Syed Ahmad Khan also revealed that the fact that this was not just a military uprising as assumed by the British and foreigners. जो ये assume करते हैं कि ये military uprising थी, spy mutiny थी, rebellion थी. Anyhow, entire population actively participate in the uprising. Entire population, all the Hindus, Muslims, Sikhs, all the communities that live in India actively participate in this war of independence and uprising, and all the communities, Indian communities affected from this war, उससे affect हुई. Muslim were bitter, and Muslim affect a lot because they had lost the power, while the Hindus were indifferent because they had only suffered a change of master. मुस्लिम्स जो थे वो इस वॉर से ज़्यादा ब्रिटिश के इसको कलोनलाइज बनाने, इंडिया को जो उन्होंने कलोनलाइज किया था, यहाँ उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, उससे मुस्लिम्स ज़्यादा बेटर थे क्योंकि इससे पहले मुस्लिम रूल कर रहे थे. तो आप खुद सोचें, बल्कि हिस्टोरियंस आपके नोट्स में भी बहुत सी जगह पे लिखा हुआ है कि अगर आप किसी से उसकी पावर छीनते हैं तो उससे क्या होगा, वो इतनी जल्दी आपको एक्सेप्ट तो नहीं करेगा ना. ब्रिटिश ने मुस्लिम्स की जो पावर थी उसको यहाँ पे ख़त्म किया. मुस्लिम जो इन्होंने मैनी 100 years यहाँ पे रूल किया, उनकी पावर को उन्होंने ख़त्म किया. देन मुस्लिम्स आर नॉट विलिंग टू कोऑपरेट विद द न्यू मास्टर्स. मुस्लिम उससे विलिंग नहीं थे कि वो ब्रिटिश से कोऑपरेट करें जी, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर को जो है वो उनकी लॉस्ट हुई थी, और हिंदू को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था.
बिकॉज इससे पहले मुस्लिम्स उनके मास्टर्स थे, अब जस्ट उनके मास्टर्स चेंज हुए थे और कोई उन्होंने इतना अफेक्ट नहीं किया था। इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इन दिस अपराइजिंग मुस्लिम हिंदूज इक्वली पार्टिसिपेट इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हिंदुओं ने इक्वली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया था। बट आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर हिंदू रियलाइज द ब्रिटिश दैट we did not participate in the war, we have not no problem with you. Only Muslim, they blame to Muslims that Muslims started this war against you because Muslims are not willing to cooperate or tolerate you. Clear? तो उन्होंने ये रियलाइज करवाया, and soon Hindus became the partner of the British, of the new masters. अगर हम इस चीज़ को देखें कि हिंदूज जो थे, अगर जैसे ब्रिटिश ने अज्यूम किया कि हिंदू यहाँ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने वॉर अपराइज की, तो इससे पहले भी इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्होंने सेवरल ओकेजन्स पर अपराइजिंग की थी। 1806 में मद्रास में सोल्जर्स रिबेल्ड अगेंस्ट द बैन ऑफ द यूजिंग ऑफ तिलक। तिलक कहते हैं ये हिंदूज को, आपने देखा होगा कि वो अपने फॉरहेड पे उन्होंने एक मार्क, एक निशान सा उन्होंने अपने फॉरहेड पे लगाया होता है, ठीक है, तो उसको उन्होंने बैन कर दिया था ब्रिटिश ने। तो तब भी सोल्जर्स ने रिबेलियन स्टार्ट की थी, तो लेकिन वो इस लेवल की तो नहीं थी। तो अगर रिबेलियन या म्यूटनी की बात की जा रही है, वो भी स्पाइस की तरफ से, तो इससे पहले भी डिफरेंट ओकेजन्स पे रिबेलियन हो चुकी थी, बट इस लेवल की नहीं थी, क्योंकि उस रिबेलियस में जस्ट स्पाइस थे और वो लिमिटेड लेवल पे थी। लेकिन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको फॉरनर्स रिबेलियन या म्यूटनी कह रहे हैं बाय द साइड ऑफ सोल्जर्स, इसमें पूरी पॉपुलेशन जो थी, इंटायर पॉपुलेशन जो थी, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इन कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे इस रिवॉल्ट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और कुछ में कम थी। कुछ ऐसे एरियाज थे जो जिन्होंने वॉर में ऐसा इतनी इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन कुछ एरियाज जो थे वो हब थे रिवॉल्ट का, जिसमें दिल्ली था, मीरठ था और झांसी था, बहुत से ऐसे और भी एरियाज हैं जिनको हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। और इसी तरह अगर हम देखें तो रिवॉल्ट जो है 1822 में बरकपुर में भी रिवॉल्ट हुआ था। और इस तरह 1849 में सिमिलर रिवॉल्ट जो है वो रावलपिंडी में हुआ। 1852 में पंजाब और बंगाल में भी रिवॉल्ट जो है वो हुआ था। तो रिवॉल्ट को अगर हम बात करें तो ये जो लिमिटेड लेवल पे रिवॉल्ट है, ये तो इससे पहले भी ब्रिटिश आर्मी में, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें ये हमें नजर आते हैं। Actually, British want to dominate, establish the political dominate over the country. वो politically यहाँ पे dominate करना चाहते थे और trading यहाँ पे करना चाहते थे, यहाँ के लोगों को exploit कर रहे थे, यहाँ की economy को exploit कर रहे थे। First of all, we will discuss the military causes of the revolt and war of independence. Inhuman and unjust treatment with the soldiers. Soldiers were fed up with the inhuman and just treatment by their English masters. जो ब्रिटिश में ब्रिटिश आर्मी में जो हायर लेवल की पोस्ट थी, that was reserved only for the on the British, and spies were recruited uh, for the help of these British masters. The company official, East India Company officials did not feel any hesitation in injuring the religious sentiment of the soldiers. वो उनके रिलीजन को क्रिटिसाइज करते थे, उनके बारे में जो है वो अनजस्ट रिलीजियस बेसिस पे उनको अनजस्ट जो है वो ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता था। और बिल्कुल जो है कोई भी अपने रिलीजन के अगेंस्ट तो कुछ भी ऐसा नहीं सुन सकता, तो उन्हें इनह्यूमन ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता था। उनके सेंटिमेंट्स जो थे वो हर्ट किए जाते थे, उनको अलाउ नहीं था कि वो तिलक या साफा जो है उसको यूज़ कर सकें। तिलक जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हिंदूज हैं उनके फॉरहेड पे वो एक निशान, एक मार्क जो है वो लगाते हैं, उसको तिलक बोलते हैं। और
साफा जो है, अभी भी आप रूरल एरियाज में देखेंगे तो आपको साफा स्कार्फ, हेड स्कार्फ होता है, जिसको अक्सर रूरल एरियाज में आप देखेंगे तो लोगों ने शोल्डर पे रखा होता है या सर पे रखा होता है। दिस इज कॉल्ड साफा। तो उसको उन्होंने मना कर दिया कि जी रिंशा, सिर्फ रेड कलर मार्क जरूरी नहीं कि वो जो फॉरहेड पे लगाते हैं वो रेड कलर मार्क रेड कलर का ही हो, किसी भी कलर का हो सकता है, वो किसी भी कलर का हो सकता है। तो इससे कोई व्हाइट कलर ब्लैक भी होते हैं मैम। जी not allowed to use a talek and to cover head with safas, difference between salaries and living standard। और आप ये भी देखते हैं कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, सैलरीज में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। सैलरीज में क्यों फ़र्क था? जो स्पॉइस थे उन्हें बहुत मिनिमम जो वेजेस हैं या मंथली अमाउंट है वो दी जाती थी, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो हाई पैकेजेस जो हैं, हाई सैलरी पैकेजेस जो हैं वो रिसीव कर रहे थे। और लिविंग स्टैंडर्ड में भी डिफरेंट था। ब्रिटिश वर एडवांस्ड, उनका एक सोशल जो सोशल और कल्चरली वो बिल्कुल यहाँ के लोगों से डिफरेंट थे। सैलरीज बहुत कम थी। हायर ऑल द हायर पोस्ट ओनली रिजर्व फॉर द इंग्लिश मैन, नॉट फॉर द लोकल्स। ब्रिटिश आल्सो यूज देयर आर्मी टू फाइट अदर कंट्रीज एंड दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेड टू इंडियंस। ब्रिटिश जो थे उस आर्मी को अपनी दूसरी जो यहाँ पे स्पॉयज थे, यहाँ की इंडियन आर्मी थी, उसको अपनी दूसरी जो उनकी कॉलोनीज थी वहाँ पे या किसी दूसरी जगह पे अगर उन्हें वॉर करनी होती थी तो यहाँ से जो उन्होंने रिक्रूटमेंट की होती थी आर्मी में उसको लेके जाते थे साथ। लेकिन जो यहाँ के ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे वो ओवरसीज ट्रैवलिंग को रिलीजियसली वो पसंद नहीं करते थे। मतलब पे वो समझते थे कि ये हमें जो है वो वॉयज नहीं करना चाहिए, हमें जो है वो ओवरसीज अगर हम ट्रैवलिंग करेंगे तो ये सिन है थी। तो ऑर्थोडॉक्स हिंदूस जो हैं वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे। प्रमोशन के इंडियन सोल्जर्स हैड नो चांस ऑफ प्रमोशन, उनके प्रमोशन के कोई चांस नहीं होते थे। वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते थे ब्रिटिश कंपनी के लिए, ब्रिटिश के लिए। और दे कुड नॉट थिंक टू दे कुड नॉट थिंक अबाउट द हायर रैंक कि उनकी प्रमोशंस होंगी, उनकी सैलरीज इंक्रीज होंगी या उनको ब्रिटिश आर्मी में कोई हायर रैंक मिलेगा। अगर वो सिपाही उन्होंने ज्वाइन एज अ स्पाई उन्होंने ज्वाइन किया है तो वो एज अ स्पाई ही रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ। तो कोई भी उनको ऐसे बेनिफिट्स जो हैं वो सच नहीं मिल रहे थे। प्रमोशन के चांसेस नहीं थे। प्रीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज पार्ट ऑफ द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री। क्रिश्चियनिटी की प्रीचिंग की जाती थी, और जो बहुत से ऐसे न्यू मेथड्स यूज़ किए जाते थे कि क्रिश्चियनिटी की तरफ जो हैं वो स्पाइस या सोल्जर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हों। और यहाँ के जो लोकल नेटिव्स थे उनके रिलीजन को में इंटरफेयर किया जाता था, उनके रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर किया जाता था, उनके रिलीजन को क्रिटिसाइज किया जाता था। एंड दिस वाज नॉट टॉलरेबल फॉर द लोकल कम्युनिटी। और ये यहाँ की लोकल कम्युनिटी के लिए बिल्कुल भी किसी भी सूरत जो है इन एनी केस ये टॉलरेबल नहीं था। These were the military causes of the uprising। ये अपराइजिंग के कुछ मिलिट्री कॉजेज थे। और ये जो मिलिट्री कॉजेज थे ये कोई सडन ऐसे नहीं हुआ था, ये ग्रेजुअली जो है लोग इसको इतने सालों से सफ़र कर रहे थे, और फिर जो उनकी जो एक टॉलरेंस का लेवल था वो ख़त्म होने की वजह से ये अपराइजिंग स्टार्ट हुई। What were the religious causes of this war? Propagation of Christianity, first duty of East India Company. East India Company that was established for the purpose of trade. They also started the preaching of Christianity, and it was his first duty. East India Company, when arrived in India, uh, then its purpose was to trade and commerce। उनकी ट्रेड और कॉमर्स जो था वो उनका पर्पस था। बट ग्रेजुअली उन्होंने क्रिश्चियनिटी की प्रीचिंग स्टार्ट की, और फोर्सफुली जो है फोर्सफुली कन्वर्शन जो है वो भी उन्होंने करना शुरू की। दे also condemned and criticized the religion of the local people, and the company officials, East India Company officials, also invited their subordinate to their homes and forced them to listen to the sermons and of the priests।
वो उन्हें अपने जैसे काम के लिए जो है वो जो उनके ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो अपने स्पाइस को काम के लिए अपने घरों में भी बुला लेते थे, कोई उन्हें काम होता था तो वहाँ पे वो उनको फोर्स करते थे कि वो उनके प्रीस्ट जो हैं उनके सर्मन्स जो हैं उनको सुने। हर एवरी पॉसिबल एफर्ट्स जो हैं वो की जाती थी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। एंड Indians look up the positive step of the British government with suspicion। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो थे वो भी अगर कोई ब्रिटिश कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव लेते थे, कोई पॉजिटिव डिसीजन करते थे, या वो डिसीजन जो यहाँ के नेटिव्स की फेवर में होते थे उसको भी लोग जो है बहुत ही सस्पिशियसली देखा करते थे कि क्या वाकई ये हमारे लिए पॉजिटिव हैं, क्योंकि इससे पहले वो उनका नेगेटिव एटीट्यूड दे चुके थे, उनके नेगेटिव इनिशिएटिव जो ब्रिटिश ने लिए थे यहाँ पे अपनी इस इंडियन कॉलोनी में, उसको वो देख चुके थे, तो वो यहाँ के लोग उन पर इतना ट्रस्ट नहीं करते थे। इसी तरह 1850 में एक लॉ, लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस अ लॉ, उन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया, और वो लॉ क्या था, इन 1850 लॉ वाज इंट्रोड्यूस दैट अ चेंज ऑफ रिलीजन वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन इनहेरिटेंस। व्हाट इज इट मीन, इसका क्या मतलब है? 1850 में लॉर्ड कैनिंग ने जो लॉ इंट्रोड्यूस करवाया उसमें ये था कि अगर आप कन्वर्जन कर लेते हैं, अपने रिलीजन को छोड़ देते हैं, तो आपकी इनहेरिटेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सपोज फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो, अगर कोई इंडियन है उसने क्रिश्चियनिटी को में कन्वर्ट हो गया है, तो उसके डेफिनेटली उसके जो पेरेंट्स होंगे वो उसको प्रॉपर्टी में शेयर नहीं देंगे। तो 1850 में लॉ इंट्रोड्यूस करवा दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कोई क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है या कन्वर्जन भी कर लेता है तो उसको उसके इनहेरिटेंस राइट्स जो हैं वो मिलेंगे, उसको प्रॉपर्टी में उसका कंप्लीट शेयर मिलेगा। और ये इस वजह से ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि लोग जो हैं, अगर कोई ये सोच रहा है, कोई ये अज्यूम कर रहा है कि उसको प्रॉपर्टी में उसके राइट्स नहीं मिलेंगे या इनहेरिटेंस से वो डिप्राइव्ड कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा, इंडियंस, अब हम पिक्चर्स, हमें पिक्चर की टू साइड्स जो है वो हमें देखनी चाहिए। नो डाउट के ब्रिटिश ने यहाँ पे अपने लॉज इंट्रोड्यूस करवाए, यहाँ के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जो है, इकोनॉमिक फैब्रिक जो है उसको डिस्ट्रॉय किया, यहाँ पे ग्रेजुअली ओकेपाई किया, ट्रेड की पर्पज से आए थे, पॉलिटिकल डोमिनेशन अपनी यहाँ पे एस्टेब्लिश की, और यहाँ पे मुख्तलिफ जो यहाँ के एरियाज थे, मुख्तलिफ स्टेट्स थे, वहाँ पे लोकल रूलर्स के साथ उन्होंने वॉर भी की, जिनको हम नेक्स्ट आगे स्टडी करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव्स भी लिए। उन्होंने रेलवे सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम, वर्ल्ड बेस्ट इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ पे साइंटिफिक और इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई, तो टेलीग्राफ सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। बट द पीपल ऑफ इंडिया लुक दीज स्टेप्स सस्पिशियसली। वो यहाँ के जो इनके मैयर्स जो लिए गए थे उनको भी वो नेगेटिवली देखते थे, उन्हें भी उन मैयर्स में कोई पॉजिटिव कुछ नजर नहीं आता था। और सर सैयद अहमद खान also believe that the interference in the religious matters is also the major cause of this uprising of 1857 कि ये सर सैयद अहमद खान also agreed this point। what were the political causes of this uprising? The political causes क्या थे? British left no stone unturned in whipping out all the traces of Islam and the Muslims from the country। The English जो थे वो Englishman had become the ruler of India, और उन्होंने एंड आल्सो डिप्राइविंग मुस्लिम ऑफ देयर गवर्नमेंट, मुसलमानों को उनकी गवर्नमेंट से, जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, यहाँ के किंग थे, एम्परर थे, एक इतनी बड़ी मुगल एम्पायर यहाँ पे एस्टेब्लिश थी, उसको उससे वो डिप्राइव हो गए इंडियंस। और यहाँ पे जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो है वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोग जो हैं वो, उन्होंने यहाँ पे इस्लाम को, मुस्लिम्स को ख़त्म करने की कोशिश की, मुसलमानों को डिफीट किया, पॉलिटिकली यहाँ पे डिफीट किया, यहाँ पे कॉलोनियल
रूल अपना स्टैब्लिश यहाँ पे किया, कंपेन स्टार्ट की अगेंस्ट द मुस्लिम्स, अगेंस्ट द इंडियंस। उन्होंने व्हाट कंपेन वाज स्टार्टेड, उन्होंने क्या कंपेन स्टार्ट की कि यहाँ के लोग जो हैं, इंडियंस आर इंफीरियर एंड वी आर सुपीरियर। इंडियंस, व्हाई इंडियंस की हिस्ट्री को उन्होंने काफ़ी कंपेन, हिस्ट्री को उन्होंने काफ़ी मिस इंटरप्रेट करके रिप्रेजेंट किया, यहाँ के लोगों की हिस्ट्री को, कल्चर को, यहाँ के लोगों के रिलीजन को मिस इंटरप्रेट किया। और बहुत ही डिस्टॉर्टेड पिक्चर मुस्लिम हिस्ट्री की यहाँ पे प्रेजेंट की। दे प्रेजेंटेड अ डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री हियर, दैट मुस्लिम्स की तो हिस्ट्री में कोई इन्वेंशंस ही नहीं है, कोई उनकी हिस्ट्री में तो उनकी कोई अचीवमेंट्स नहीं है। ऑल द इन्वेंशंस एंड द डिस्कवरीज आर बिलोंग टू द ब्रिटिश। ठीक है, सारी जो डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, वो उनकी हैं। और अपनी हिस्ट्री को उन्होंने बहुत ही जो है वो एक इस तरह से प्रेजेंट किया कि यहाँ के लोग खुद को इंफीरियर कंसीडर करें। द पीपल ऑफ इंडिया considered itself inferior and assumed that the British and new masters are superior. Uh, they also try to vanish the glory of the Mughals की glory और उनकी एक जो ग्लोरी को ख़त्म करने की उन्होंने यहाँ पे कोशिश की। मुगल एम्पायर वाज कन्फाइंड फोर वॉल ऑफ द रेड फोर्ट की फोर वॉल तक मुगल एम्पायर रह गई, कि जो उनकी इतनी ह्यूज एम्पायर थी वो लिमिटेड हो गई और सिर्फ अपने फोर्ट तक लिमिट होके रह गई। Lord Dalhousie doctrine of lapse. Lord Dalhousie also presented the doctrine of lapse. What was doctrine of lapse that introduced by Lord Dalhousie? If an Indian ruler did not have his real son, he was not allowed to adopt it any son of his relative to become his successor. कि अगर suppose if any ruler of any state have not his real son, और वो अपने किसी and he adopted the son of their relative, अपने relative के son को अगर adopt कर लेता है तो their his adopted son could not become his successor, वो उसका सक्सेसर नहीं बन सकता। Why British introduced this law? इस लॉ को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? Anybody know? Kindly raise your hand if anybody know about this. Why British introduced this new law, doctrine of lapse, called doctrine of lapse? To break the lineage of G. Yes, To break Munib. their Yes, Maham. lineage, because if they don't have a son, they wouldn't have any successor. So slowly their rulers will lessen with British, them. the territory came under the British authority. Yes, Okay, ma'am. okay, Munibullah. Yes, Munib. जी मैम, मैंने भी यही कहना था कि अगर किसी रूलर का बेटा नहीं होगा तो ब्रिटिश टेक ओवर कर रियल लेगी सन नहीं होगा, रियल सन। ठीक है। जी। तो वो टेरिटरी ऑफ की जो स्टेट थी, जिस स्टेट का वो रूलर होगा, वो स्टेट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चली जाएगी, वो फिर डायरेक्टली उसको कंट्रोल करेगी। दैट वाज द पर्पस टू इंट्रोड्यूस दिस लॉ। यस रिमशा। Ma'am, I had to ask that, like in India, it was also the culture that if someone did, like the ruler didn't have his real son, then their brother's son can also become the ruler. So this was also stopped No, by this or not? this was also stopped. This was also stopped by the under this law. Okay. Why this was stopped under this law? Because they want to maximum occupy the territory. अगर उसका कोई रियल सन नहीं है तो उसने, और ये अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस रिस्ट्रिक्शन वाज इम्पोज्ड दैट द अडॉप्टेड सन कैन नॉट बी नॉमिनेटेड एज अ सक्सेसिव, तो वो उसकी जो स्टेट होगी वो उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चली जाएगी, वो डायरेक्टली फिर उस पर रूल करेंगे। और वन थिंग मोर कि एक तो थी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सब कॉन्टिनेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ठीक है, सेंट्रल लीडरशिप थी। और सेकेंडली जो दूसरी स्टेट्स थी, छोटी छोटी स्टेट थी, उनमें भी नवाब महाराजा लोकल रूलर्स जो थे वो रूल कर रहे थे। ठीक है, तो यस
what were the accessions of state? If India company desire of conquering the whole country, अब वो whole पूरी country को अपनी domination establish करना चाहती थी, forcefully अपनी जो है domination establish करना चाहती थी, and forcibly annexation of states were carried out on a massive scale during the period of Lord Dalhousie, and it was the era of Lord Dalhousie when the annexation of the states were started, and British government force threat to the local rulers to Ma'am, annex what is his state. annexation? Beta, whenever you want to ask a question, kindly raise the hand. Annexation mean इल्हाक करना, ठीक है, कि आप Okay, ये ma'am, स्टेट जो है ये अपनी हमें दे दें, ठीक, हम इस thank पे you, रूल ma'am. करें, ठीक है. पर वो raise hand का option नहीं आ रहा. अच्छा, but other students also raising the hand. Extreme form of injustice and cruelty in the process of annexation. People face economic problem and hardship during the annexation. Why people face economic problem? Because East India Company resorted to an extreme form of injustice and cruelty in the whole process. Hindus, hundreds of thousands of people who were associated with the courts of the state were faced with dire economic problems and hardship, because in the ruler of the in the कोर्ट मीन जिसे आप दरबार भी कहते हैं, ठीक है. अब वो कोर्ट आजकल वाली कोर्ट ना समझिएगा कि जैसे जुडिशरी लाइक जो हमारी आजकल अगर हम कोर्ट का वर्ड यूज करते हैं तो हम कहते हैं शायद हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, इस टाइप. ये नहीं था. दरबार जो उस वक्त होता था रूलर का, उसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स एसोसिएटेड विद दिस कोर्ट, और यही उनकी एक फाइनेंशियली यही चीज उन्हें स्ट्रेंथन भी करती थी कि वो कोर्ट में काम करते थे और उनको जो है उनकी सैलरीज या उनके अलाउंस जो है वो दिए जाते थे. And Lord Dalhousie openly said that it is the duty of the British government to occupy the wealth and dominate on the on India. कि यहाँ पे जो है वो every free and fair and unfair means use fair and unfair opportunities to dominate on the wealth of Indians की wealth पे dominate करने के लिए वो fair and unfair means को use करें. Openly Lord Dalhousie said this. अब इसमें sometimes यहाँ पे जो है हेनरी सीलमैन्स जो थे, जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने जो है वो एनेक्सेशन के अगेंस्ट थे. वो नहीं चाहते थे कि जो स्टेट्स हैं उनकी ब्रिटिश एम्पायर के साथ जो है एनेक्सेशन हो, तो उनको फिर ब्रिटिश जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको रिमूव कर दिया था यहाँ से कि हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट. अगर उनका कोई अपना भी शख्स जो है इनके अगेंस्ट उनके रूल के जाता था तो वो उसको भी रिप्लेस कर देते थे वहां से. और इसी जो न्यू रूलर फिर उनके बाद आए तो न्यू लॉर्ड आए उनके बाद वो फिर इसकी एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स की स्ट्रांगली फेवर में थे. इसके ओट्रेम थे. ओट्रेम जो थे वो उन्होंने अगेन जो है एनेक्सेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया, और कोई रूलर अगर एनेक्सेशन के प्रोसेस में कोऑपरेट नहीं किया करता था तो उनको वो कॉन्सिक्वेंसेस का थ्रेट करते थे कि आपको डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे. और ये जो एनेक्सेशन थी स्टेट की, ये जो बहुत ही डिस्परेट थी, जिसके कोई भी रूलर जो है वो इतने अरसे से अपनी रूलिंग को एंजॉय कर रहा है और उसके बाद जो है उससे उसकी स्टेट जो है वो ले ली जाती थी. इवन सम टाइम्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज और लैंड्स जो है वो उनको कुछ अमाउंट ऑफर की जाती थी कि हम आपको ये अमाउंट दे देते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी या जो स्टेट है वो हमें दे दें. नवाब ऑफ ओथ आल्सो रिफ्यूज्ड टू साइन द एनेक्सेशन और लीड टू द म्यूटनी इन द बंगाल आर्मी. जब बंगाल आर्मी में म्यूटनी स्टार्ट हुई तो नवाब ऑफ ओथ जो थे या ओथ आर्मी जो थी उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, बिकॉज नवाब ऑफ ओथ वाज नॉट इन फेवर ऑफ द एनेक्सेशन. आल्सो इनजस्टिस विद नाना साहब एंड रानी ऑफ झांसी. रानी लक्ष्मीबाई झांसी जो कि झांसी की रानी थी, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से काफ़ी सफ़र की, बिकॉज उनका एडॉप्टेड सन था, रियल सन नहीं था. सिमिलर पोजीशन वाज ऑफ नाना साहब, उनकी भी सिमिलर पोजीशन थी.
last Maratha leaders Baji Rao also removed from the empire from the power. Baji Rao को भी जो है वो power उसकी भी remove कर दी गई. And in 1827, Baji Rao nominated Nana Sahib as his successor, but with his death, Nana Sahib pension was immediately stopped by the English. कि English man British जो थे उनको pension जो है वो दिया करते थे monthly, उनकी pension जो है वो रोक दी गई. और gradually जो है इसी तरह states को conquer करना शुरू कर दिया. Economic exploitation, all the key posts were reserved for the Englishman. किसी भी Indians को native को जो है वो किसी भी higher post पे appoint या nominate नहीं किया जाता था. Actually the sole purpose of British were to carry the Indians wealth to England in several ways. के मुख्तलिफ तरीकों से different methods and strategies use करके वो यहाँ की जो wealth है उसको transfer करें England में. And that's why they destroyed the economic and native fabric of economic fabric here and destroy the industrial system here. यहाँ पे बहुत ही small scale पे industries होती थी उसको destroy कर दिया. यहाँ पे से import किया जाता था यहाँ से Indian silk को cheaper price पे. इससे पहले जो है Indian silks जो है वो फ्रांस और इटली से परचेज करते थे ब्रिटिश. लेकिन जब उन्होंने देखा कि Indian silk is very have good quality and available on cheaper price, then he bought half the price of the half price पे French और Italian silk के मुकाबले में as compared to French and Italian silk वो यहाँ से half price पे जो है वो silk purchase कर लेते थे जिससे उनको बहुत ज़्यादा economic benefit होता था. Imposed heavy taxes on agriculture and quality of product. हर चीज़ पे इतने heavy taxes थे और ये taxes impose करने due to imposition of the taxes on the local industry and on agriculture, the economic fabric was destroyed here. Moneylender was also rapacious and East India Company destroyed traditional economic fabric of the society. British goods promoted at the cost of Indian handicraft destroy the Indian handicraftsman and artisan. यहाँ की जो भी हैंडीक्राफ्ट थी उनको ख़त्म कर दिया गया था. और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कारपेट्स मेकर जो थे उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया. यहाँ पे कारपेट जो बनते थे वो बनना यहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिए. यहाँ के जो प्रोफेशनल्स थे उन्हें अपने प्रोफेशन को छोड़ना पड़ा. Immediate, what were the immediate, this causes were the gradual causes of this war, but one was the immediate cause of the war of independence and spy mutiny was the grease cartridges that was used in the unfilled rifles that was introduced by the British in 1856, and this unfilled rifle was invented in 1852 but introduced in India in 1856. The induction of grease cartridges in unfilled rifle was the main cause of we can say immediate cause of this uprising. Soldiers were required to buy the cartridges before loading, and it was believed that they were coated with pig and cow fat. And you all know that pig was prohibited for the Muslims, and cow was the respectable animal for Hindus. And both Hindus and Muslims were serving as spies in the British Army. That's why they were not willing to use these Enfield rifles. Yes, Bilhaj? Meerut. Outbreak of war started from Meerut. The revolt of 1857. Some of the soldiers stationed at Meerut cantonment refused to use the cartridges. Cartridges को उन्होंने use करने से refuse कर दिया, and then 85 soldiers in Meerut was imprisoned by their British masters. उनकी तरफ से उनको imprisonment कर दिया गया. Other spies in the Meerut army started a revolt against their English officers, killed them and marched to Delhi because
Delhi was the capital, and Delhi Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar nominally headed the revolt, but the real head was General Bakht Khan. बहादुर शाह जफर नॉमिनली हेड थे रिवॉल्ट के, और यानी कि प्रैक्टिकली वो बैटल फील्ड में नहीं थे. बैटल फील्ड में उन्होंने नॉमिनेट किया था जनरल बख्त खान को, वो डील कर रहे थे. Fall of Delhi, the British finally attacked on Delhi in September, and for 6 days there was desperate fighting between the forces. But by in September 1857, the British reoccupied Delhi. Thousands of innocent people were killed and hundreds were hanged. The old king was captured and later deported to Rangoon, where he died in 1862. His two sons were also shot down, and along his grandson, and now the imperial dynasty of the Mughal was ended. और इसी के साथ जो है एक जो इतनी डायनेस्टी थी मुगल्स की, वो ख़त्म हो गई. और फाइनली जब आप किसी भी कंट्री के कैपिटल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उस पूरी कंट्री को जो है वो डिफीट कर दिया है और उसे आपने कन्क्वर कर लिया है. कानपुर कानपुर अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आई वांट टू ऐड समथिंग कि रिवॉल्ट एट अ टाइम was not started in whole the subcontinent or India. ठीक है, एक साथ यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ था, और कोई नो सेंट्रलाइज कमांड वाज एग्जिस्टेड ऑफ दिस रिवॉल्ट. कोई सेंट्रलाइज कमांड नहीं थी. दिल्ली में अलग रूलर जो हैं वो उनसे लड़ाई कर रहे हैं, वॉर हो रही है. कानपुर में जो रूलर अलग जो है वो रिवॉल्ट उन्होंने अपराइज किया है. मीरठ में सेपरेट है. तो हर जगह पे जो है लोकल रूलर्स अपने एंड पे जो है वो वॉर कर रहे हैं. कोई सेंट्रलाइज्ड या यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है. ठीक. The revolt was headed by Nana Sahib. A number of British fell into the hands and he showed great kindness to them. But when he heard about inhuman attitude of General O'Neill towards Indian, he captured Kanpur and proclaimed himself the Peshwa. But the victory was short-lived. वो परमानेंट उनकी विक्ट्री नहीं थी. दिस वाज शॉर्ट लिव एंड कानपुर वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, और इसको दोबारा से रिकैप्चर कर लिया गया. लखनऊ was also the hub of the revolt. लखनऊ में भी रिवॉल्ट, ये कुछ मेजर सिटीज हैं जहाँ पे रिवॉल्ट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी. लखनऊ struggle for independence and Lucknow was led by Nawab Wajid. Indians did not make any concession and killed most of the Englishmen. To Commander-in-Chief General Colin Campbell marched towards Lucknow and captured it. And gradually आप देख रहे हैं कि जितनी भी states थी where the revolt was uprised, captured by the British. Jhansi, Rani of Jhansi, Lakshmi Bai Jhansi was the ruler of Jhansi, and he started a revolt against the British with the help of Tantia Tope. Created problem for the British troops, and Rani Lakshmi Bai Jhansi also suffered from Lord Dalhousie's doctrine of lapse, because she has the adopted son and had not the royal son. Rani and Tantia Tope could not match the resources at the command of the British and ultimately defeated, because both local leaders had not the economic resources to meet this revolt. Bihar was another hub of the revolt. Kanwar Singh was the organizer of the revolt in Bihar. Kanwar Singh fought with the British in Bihar and later joined hand with Nana Sahib. Causes of failure. Why the revolt was failure? What do you think? Why the revolt? Why the Indian was failed to defeat the British? What were the reason behind it? Anybody know? And they were not united. They were not united. Good. They had not the central command. They jealous with each other.
जितने भी लोकल रूलर्स थे, all the local rulers did not cooperate with each other and had jealousy. There were rebels among them. They were Baghi. traitors. Yeah, yeah, yeah. True. ट्रेटर्स का वर्ड आप यूज करें इसके लिए कि वो कुछ गद्दार जो है ट्रेटर्स बोलते हैं, दे हैड ट्रेटर्स थी। अच्छा, अब यहाँ पे वन थिंग आई विल ऐड हियर। अब ब्रिटिश आर्मी में जो स्पाइस थे, दे वर आल्सो इंडियंस। और जो ये जो लोकल रूलर्स थे, दे वर आल्सो, इनके जो आर्मी थी या स्पाइस थे, दे वर आल्सो इंडियंस। अब देखें कि आपस में वो लड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं ना। अगर ब्रिटिश आर्मी में कुछ हिंदू या मुस्लिम्स हैं, तो जो ये जो लोकल रूलर जो लड़ रहे हैं, उनकी आर्मी में भी हिंदू और मुस्लिम्स हैं। What was the causes of failure changing the plan? War was started prematurely due to the Carthage's incident and could not materialize throughout the country. I have already told you that this war was not materialized throughout the country. Throughout the country नहीं थी। और अभी हमने देखा कि मीरठ में थी, दिल्ली में थी, झांसी में थी। इसमें कुछ इसके मेन हब्स थे 7-8 जहाँ पे ये इसकी इंटेंसिटी थी। बाकी जगहों पे कुछ ऐसा ये वॉर नहीं थी। ट्रीचरी ऑफ द सिख, ट्रेचरी किसे कहते हैं? डिसलॉयलिटी को। सिख जो थे उन्होंने डिसलॉयलिटी शो की। सिख प्रोवाइडेड एवरी पॉसिबल असिस्टेंट टू इंग्लिश आर्मी। Sikh was with the side of British. Some soldiers in Punjab and South India also fought on the side of British to crush these rebellion. कि आपके अपने लोग ही जो हैं वो आपको क्रश कर रहे हैं, then how you can win the war? This is also the question. Absent of an active and effective leadership. कोई effective leadership नहीं थी, हर कोई अपने एंड पे ब्रिटिश को डिफीट करने की कोशिश कर रहा था। they had lack of resources, economic resources, उनके पास इतने नहीं थे। They had no modernized equipment. They have lack of means of communications and transportation. Englishmen fought with modern weapon, gun, cannons and some other modern weapons, while the rebels fought with ancient weapons and pikes, swords and arrow. British army was well trained and was much disciplined. अब देखेंगे एक डिसिप्लिन्ड आर्मी जो है वो कितनी मैटर करती है वॉर में, और उनकी आर्मी ट्रेंड थी। और यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड आर्मी वर नॉट अवेलेबल हियर। Economic conditions were poor. India was facing economic problem. Revolutionary leader around Bahadur Shah Zafar were crippled by severe economic hardship. अब वो लोग सोल्जर्स जो कि बहादुर शाह जफर के साथ लड़ रहे थे वॉर में अगेंस्ट द ब्रिटिश, उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, उनको सैलरीज नहीं मिल रही थी, उनके इकोनॉमिक इश्यूज थे, जिसके बाद वो बहुत ही डिस्परेटली जो है वो वॉर में पार्टिसिपेट कर रही थी। आपके पास जो इकोनॉमिक फैक्टर होता है ना, इज अ सोल मोटिवेशनल फैक्टर। अगर आपको अब एक सोल्जर जो है उसको सैलरी नहीं मिल रही है, उसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हाउ दे कैन fight enthusiastically in the war. That's why the soldiers could not fight devotedly in the war of independence by the side of the Bahadur Shah Zafar. Effect of the revolt 1857, क्या इसके effect थे? What were the after effect of this war? Causes हमने देख लिए। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वॉज स्ट्रेंथन एंड नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रूप वर इंक्रीज। अब यहाँ पे वॉर खत्म हो जाती है और नाउ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड स्पाई म्यूटनी वॉज and British East India Company was and destroyed, and British East India Company was ended, and now the British Crown directly rule over India. British rule जो है वो British Crown directly rule over India and abolish the East India Company. East India Company को उन्होंने abolish कर दिया, directly वो यहाँ पे rule कर रहे हैं, अपनी military को strengthen उन्होंने किया। अब वो यहाँ पे all in all British हैं जो यहाँ के rulers बन गए। Revolt brought massive economic destruction. यहाँ पे बहुत ज़्यादा economic destruction हुआ। Muslims suffered a lot. All the properties taken from the Muslim and handed over to Hindus and Sikhs who supported to British in the War of Independence
Muslims. इस वॉर में जिन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया उनको सब प्रॉपर्टीज मुसलमानों से लेकर उनको दे दी गई and Muslims were helpless. Positive aspect of the revolt was that it laid the foundation of for the nationalist movement. Nationalist movement जो है उसकी foundation यहाँ पे रखी गई. Lord Canning was the last Governor General of East India Company because the first viceroy of British government in India. अब वो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ख़त्म कर दी गई तो वाइसराय जो है वो डायरेक्टली अपॉइंट किया जाने लगा. British adopted a discriminatory policy towards the Hindus and the Muslim and adopted the policy of डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया. कैसे उन्होंने अडॉप्ट किया कि यहाँ के लोगों में कभी भी यूनिटी ना हो आ सके, यूनिटी यहाँ पे प्रिवेल ना करे, ये लोग आपस में लड़ते रहें. और उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे मैयव लिए. हिंदूज ऑलवेज सपोर्टेड टू ब्रिटिश while the Muslims were reluctant to cooperate with the new masters. ने कहा कि इन्होंने हम पे इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोज कर दी है, हम वो नहीं लेंगे. while the Hindus welcome the English language and scientific education. अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सर सैयद अहमद खान मूवमेंट ऑफ अलीगढ़. नो द लेक्चर इज